Hello! In a film called Naseeb, there was a dialogue. पाल ले कोई रोग नादान जिंदगी के वास्ते सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं. And the rogue that we all suffer from is good films and good cinema. I'm Atika Farooqui and welcome to this world where we celebrate good performances, good writing, great music. Let's start the show with the highlights. Dream Girl is an over-the-top comedy of errors and messy cross-connections that entertain but with cringe. Actor Aayushmann Khurrana talks about living the dream by giving some memorable performances. Bhediya, Stree and Bala director Amar Kaushik talks about that one film that changed his life. And Rahman takes a trip down memory lane and talks about composing music for Dil Se. Let's start with Dream Girl 2 that releases in cinema halls this week. Raj Chandelier, in his directorial debut back in 2019, had introduced audiences to Dream Girl, a film that had showcased his knack for tickling funny bones. Fast forward 3 years and he returns with Dream Girl 2, a sequel that amps up the volume on comedy. The movie begins with an extravagant Bollywood song, immediately setting the tone for a raucous ride. The ensemble cast, boasting of talents like Manoj Joshi, Vijay Raz, Seema Pahwa, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Anu Kapoor and Asrani, adds a layer of brilliance, of course. Aayushmann Khurrana again steps into the shoes of Karam, while Ananya Panday takes on the role of Pari, the film's central characters. The story kicks off with a conflict triggered by the awkward revelation of Karam and Pari's love affair. Pari's father, portrayed by Manoj Joshi, a lawyer, meets Karam's father, Jagjit, played by Anu Kapoor, to talk about Karam and Pari's marriage. In their initial encounter, Manoj Joshi's character challenges Karam to prove himself worthy of Pari's affections by bringing a $250 million, emulating the villain father of the 90s. This premise propels Karam into a quest to gather that sum, leading to a series of comical subplots and eccentric characters. The first half of the movie rides well on Aayushmann's impeccable comic timing and the veteran supporting cast's wealth of comedic experience. Puns and one-liners land effectively, injecting decent humor into the narrative. However, as the plot progresses, it loses some of its steam, despite juggling multiple subplots and an abundance of engineered romantic situations among multiple characters, which eventually weakens the chemistry between Karam and Pari, emerging as one of the film's drawbacks. Ananya Panday's character arc is somewhat vanilla, but she manages to shine whenever she's on screen. The rest of the cast lend robust support to Aayushmann Khurrana, crafting an engaging cinematic experience. While the first installment seemed to have a coherent storyline, the sequel struggles with narrative depth. The delivery of gags and one-liners become relentless, occasionally missing the mark despite the cast's exceptional efforts. Manoj Joshi's presence is impactful, though he has given very minimal screen time here, leaving audiences wanting for more. The direction style of the film mirrors the fast-paced skits of popular TV reality shows and satisfies the audience with some occasional laughter despite the lack of cinematic quality in the screenplay. At the later part of the movie, it seems like makers felt an urgency to educate the viewers about homosexuality, moral values, gender fluidity, feminism by giving random statements like dialogues such as "love is love, man" to the protagonist, but it could only make the audience shrunk to their seats more as they felt very preachy. To create comic puns and one-liners, the writing goes for a toss at moments as there is a noticeable insincerity in the writing. The most concerning aspect is the casual and insensitive portrayal of depression. Apart from that, some jokes are unapologetic and do not consider the sensibilities of the 21st century audience or the need for political correctness. In a sense, Dream Girl 2 thrives as a comic entertainer, but its narrative falters at times. The well-executed performances and comedic moments show us, and they manage to keep us, the audience, engaged despite the film's shortcomings. The film can be consumed as a one-time popcorn binge only. And now moving on to the dream boy, Aayushmann. Well, Aayushmann Khurrana is one of those actors who don't blink an eyelid before experimenting with the themes of his films or addressing an issue that's futuristic in nature. A part of that risk appetite is also a gift from his days in theatre.
We chat up on a lazy afternoon and talk all things art, cinema and theatre, of course. तो कितने इंटरव्यूज हो गए आज? गिने नहीं मैंने पिछले 4 दिन से यही चल रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरत जो इंट्रोडक्शन है आज तक नहीं सुनी। तो आप ही से सीखा है। अरे कमाल। खुद भी आप लिखते हैं, आपकी इनफैक्ट किताब मैंने ऑर्डर कर दी है, क्रैकिंग द कोड, तो वो मैं अब पढ़ना शुरू करूंगी। उस वक्त मेरे पास कोई फिल्म ही नहीं थी करने के लिए, इसलिए लिखी थी मैंने। अब साल में 3 फिल्में कर रहा हूँ, वक्त नहीं मिलता कुछ और लिखने का, लेकिन सच में इसलिए लिखी थी कि फिल्में तो अच्छी आ नहीं रही, किताब ही लिख लेते हैं। बट दैट इज ऑल्सो गुड यूज ऑफ टाइम ना, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिव थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये जो आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो एक ही बात को 1000 बार कैसे कहते हैं, ये कला आप में आ गई? ये कला हर एक एक्टर में है, मुझे लगता है। जो एक एक्टिंग होती है फिल्म शूट करते हुए, दूसरी एक्टिंग होती है फिल्म प्रमोट करते हुए, तो वही अभी चल रहा है। हाँ। और मतलब एक बात तो 10 तरीके से बोलना, कैसे बोला जाता है, सवाल भी तो सेम ही होते हैं ना। एक तो करेक्ट। तो आपने जैसे अभी ये इंट्रोडक्शन किया, वैसे सुनने को नहीं मिलती है। ये सवाल भी जो आपने पूछा, वो सवाल भी पहली बार किसी ने पूछा, तो ये मज़ा आएगा मुझे लग रहा है इसमें। बाहर एक बड़ा ऊंचा कद का आदमी दिखा मुझे, बॉडीगार्ड है आपका? जी। आपको किस आपदा से बचाता है वो? वो आपदा कुछ नहीं होती, बस ये कि कुछ लोग जैसे फोटोग्राफ्स मांग लेते हैं। हाँ। और दिन में अगर 50 इंटरव्यू करने हैं, हाँ। तो 50 की जगह 30 ही ना कर पाए, कहीं 50 हो जाने चाहिए। वो टाइम की पाबंदी होती, तो मैं खुद मना नहीं कर पाता। मैं मना नहीं कर पाऊँ, तुम देख लो। तो वो बॉडीगार्ड ऐसे करता है। हाँ, उनको देख के लोग वेबसाइट पे अपने आप हो जाते हैं। अच्छा लगता होगा ना जी। अच्छा, तो ऐसा अच्छे वाली बात नहीं, कभी कभी मैं बोलता रहने दो यार, रहने दो यार। हाँ, बट वक्त होता तो बिल्कुल फोटोग्राफ्स लीजिए, बात कीजिए, लेकिन हाँ। जो वक्त ही नहीं है और जर्नलिस्ट वेट कर रहे हैं, हाँ। तो आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो वो बॉडीगार्ड भी कभी कभी गलत हेडलाइंस बनवा देते हैं। जी जी जी, वो नहीं बनने देनी है। Has there been a method to your career or it just happened like that? Because people call you, they give you names कि आप तो मीनिंगफुल सिनेमा के टॉर्च बियरर हैं और ये हैं, और आई एम श्योर इट कांट हैपन बाय योर विश एंड विल ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये दोनों मिले जुला एक काम है, बाय डिफॉल्ट भी है, बाय डिज़ाइन भी है। बाय डिज़ाइन भी है, हाँ, क्योंकि पहली फिल्म मिलने से पहले कम से कम 5-6 फिल्में मना की थी मैंने कि न्यू कमर नॉर्मली करते नहीं है। रियली? दे आर डेस्परेट टू डू समथिंग, बिकॉज जो मिलता कर लेते हैं। हाँ। पर मुझे एक बात का यकीन था कि अगर मेरी पहली फिल्म गलत पड़ती है तो मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बाहर से आते हैं इस इंडस्ट्री से नहीं, तो दूसरा मौका आपको कोई नहीं देगा। तो मैं खुद जर्नलिस्ट था, मतलब क्वेश्चंस पूछता था, स्टार से इंटरेक्ट करता था, हर एक का उतार चढ़ाव देखा है, उनकी गलतियों से देखा है। तो मैंने सोचा कि कोई स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग हो या फिर अलग ही दिखे, तब शायद मैं अलग दिखूंगा। मैं रन ऑफ द मिल में, मुझे पता था शुरू से मैं अनकन्वेंशनल एक्टर हूँ और मुझे अनकन्वेंशनल चॉइसेस ही लेनी पड़ेंगी। तो उसके चलते ऐसा जॉनर बन गया जो शायद उसमें मैसेज होता था या कुछ क्वर्क होता था, किसी टैबू सब्जेक्ट को छेड़ते थे, और लोग एंटरटेन भी हो जाते थे, मैसेज भी घर ले जाते थे। तो हो गया वो। बट बहुत अच्छा हुआ, आई एम ग्लैड कि हुआ। इंडस्ट्री को भी एक अलग पहचान चाहिए थी। बट यू नो, आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं और थिएटर के बड़े किस्से होते हैं आयुष्मान। अब जैसे मेरे साथ कई बड़े अच्छे एक्टर्स थे जो बहुत अच्छे, हैंडसम, गुड लुकिंग, सब कुछ है, मतलब लड़कियां मरती हैं उनमें, लेकिन किसी प्ले में पेड़ बने। जी। आपकी कोई एक अच्छी सी थिएटर की स्टोरी? मैं स्टोरी बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि ये मेरा एक संयोग रहा है कि एक खुशकिस्मत रही है कि मैंने कभी सेकंड लीड नहीं किया थिएटर में। क्या बात कर रहे हैं? कमाल हुआ है, बताता हूँ क्या हुआ था। मतलब पहले प्ले में क्या होगा, वो भी सेकंड लीड, उससे नीचे नहीं गया। हुआ ये कि मेरा दोस्त रोचक, मैं नया इंग्लिश ऑनर्स ज्वाइन किया था, तो रोज मैं पढ़ाई करते हुए ना, खिड़की से ऑडिटोरियम नजर आता था कॉलेज का। अच्छा। और मेरी नज़र हमेशा ऑडिटोरियम पे रहती थी। अच्छा, ये ढोलक जा रही है, अच्छा ये लोग ये कुर्ता पहनकर, कहीं चोला पहनकर जा रहे हैं, अच्छा अंदर आ गए, बाहर ठहाके लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्ट लगता था मुझे, क्योंकि मैं 11th-12th से मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था। मेरा PMT इतना अच्छे नंबर से क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। अच्छा। तो पापा की शर्त थी कि बेटा अब आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, आगे जाके IAS की तैयारी करो या फिर MBA करो, लेकिन अब आर्ट्स आपको अपने मतलब के सब्जेक्ट मिल गए, सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है, तो मना कर दिया सब कुछ करने से। तो मेरा मन थिएटर में था, तो गया उसके पास, रोचक के पास, कि देखो मेरा मन है थिएटर करने का, घर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, ऑडिशन, या फिर अपने टीचर को, कोच को, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको ज़रा बता दो, मेरी सिफारिश कर दो। क्या ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। उनकी वर्कशॉप चल रही थी, स्टेज पे मुझे बुलाया कि हाँ
कहते मेरा दोस्त है, हाँ खड़ा करो सर। हाँ। तो मुझे 3-4 डायलॉग दिए और रोचक वो स्टेज पे मेरे साथ था, तो कहते रोचक तुम बोलो, हाँ वही उसको बोलने दो, ठीक है। और रोचक तुम बताओ क्या लाइन है, अब रिपीट करो आयुष्मान। रिपीट किया तो रोचक को बैक स्टेज भेज दिया, मुझे वो वाला रोल दे दिया। रोचक कहता मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरी वजह से मुझे बैक स्टेज भेज दिया गया। तो रोचक तब से म्यूजिक संभालने लग गया हमारे प्लेस का, एंड ही इज अ म्यूजिशियन राइट नाउ। तो हाँ, तो ये बहुत ही उसको अजीब लगता है कि यार मेरा रोल था वो इसको मिल गया। भाई मुझे आपकी दोस्ती मंजूर नहीं है। नहीं, ये दोस्ती अभी तक मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ कि उसकी वजह से हुआ जो हुआ, नहीं तो मैं तो शायद किस्मत के धनी है आप। जी बिल्कुल, ये एक बात इसका मतलब है जी। हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनको नाम भूलने की आदत थी, तो हमारे थिएटर ग्रुप में एक आदमी था शमशीर, कहते थे अरे सुनो, अरे 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 तलवार। मैं वही बोला, शमशीर की तलवार हो गई। अरे चाकू सुनो। थिएटर के किस्से। मैं जो भी फिल्में करता हूँ सीखने को मिलता है, चाहे मैं LGBT के लिए फिल्में की हैं, अभी तक सीख रहा हूँ। आर्टिकल 15 ने कास्टिज्म के ऊपर की है, इतना डीप रूटेड कास्टिज्म है, अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आपको पता नहीं चलता, पता नहीं होता। जब तक आप बीती नहीं होती तब तक आप समझ नहीं पाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, आप नहीं समझ पाते हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की डिस्क्रिमिनेशन मेरे सामने हुई है। हमारे थिएटर ग्रुप में एक्टर थे नॉर्थ ईस्ट से, गिटारिस्ट भी थे वो, उनके साथ होती थी, तो हमें तो बुरा लगता था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये मैं देख चुका हूँ। आयुष्मान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं कई जगह इसको कोट भी करते आई हूँ। उन्होंने बोला था कि एक्टर्स के सरनेम भी नहीं होने चाहिए। सही बात है, पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये कौन सी जात का है, कौन से मजहब का है। होने चाहिए। मुझे याद है कि पहले जब मैं नया मुंबई आया था तो मैं हाथ में लाल धागा बांधता था या कड़ा बांधता था, क्योंकि मैं लेकिन मुझे लगता है एक्टर की कोई ज़ात, कोई मज़हब नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो ऑन स्क्रीन, आपका रियल लाइफ पर्सोना उस पर हावी होना ही नहीं चाहिए। वो एक क्लीन स्लेट है। ऑल द बेस्ट आयुष्मान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। And up next we have Bhediya and Stree and Bala director Amar Kaushik talking about that one film that changed his life. He picked a 90s gem, a glorious musical directed by Ram Gopal Verma that he says had a big impact on him when he was young. He also explains what he learned from the movie, which he puts in his own use during his filmmaking process, when quizzed by my colleague Vishal Chatkara. रंगीला एक ऐसी फिल्म थी जो मैंने थिएटर में नहीं देखी थी, लेकिन उसने मुझे तब भी चेंज किया, क्योंकि उस समय मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता था। तो ये फिल्म मैंने देखी थी जब मैं आई थिंक 13-14 साल ऐसा का होऊंगा, और उस समय मेरे अंदर फिल्म का एक जो बोलते हैं ना कीड़ा जो होता है, फिल्म का कीड़ा, वो शुरू हुआ था। हम लोग वहाँ पे अरुणाचल में एक फिल्म को 3-3 दिन में देखते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वीडियो कैसेट लेके आते थे, हम लोग लगाते थे अपने VCR में, एंड देन लाइट चली जाती थी, तो वो पिक्चर आपके साथ बहुत दिन तक रहती थी। तो रंगीला पहले मैंने देखी, वहाँ पे एक वीडियो पार्लर था, वो लेके आते थे, और मैंने देखते ही मैं ऐसा हो गया कि ये क्या पिक्चर है यार, ये क्या है, ऐसा भी फिल्म बन सकती है, ऐसे भी दुनिया देख सकते हैं। क्योंकि उससे पहले आप अरुणाचल में रहे हो, आपने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, एंड बॉम्बे जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाया था, मेरे लिए ये था कि ऐसी नगरी भी होती है, ऐसी भी दुनिया होती है। आई थिंक उस समय मैंने ये फिल्म वैसी देखी थी जो रियल लोकेशंस में शूट हुई थी, बॉम्बे में। बॉम्बे एक समंदर दिखता था, मुझे कुछ पता नहीं था किसने डायरेक्ट करी है, क्या करी है, लेकिन मैं उस दुनिया में खो गया था उस फिल्म में। बेसिकली पिक्चर की कहानी बहुत ही ऐसी है कि जो हमने बहुत बार देखी है। एक मोहब्बत होती है एक लड़के को एक लड़की से, लड़की के एम्बिशंस बहुत होते हैं, वो एक डांस ग्रुप में कोरियोग्राफर के साथ डांसर होती है, एंड किस तरीके से उसको एक एक्टर मिलता है जो उसको एक लीडिंग फिल्म, बड़ी फिल्म के लिए ऑफर देता है, और कैसे वो हीरोइन बन जाती है उसकी, और वो जो लड़का जो उसको प्यार करता था अब उससे वो दूर होती जा रही है। पूरी पिक्चर में आपको ऐसा लगता था कि मुन्ना मिली को बोलेगा कि नहीं, मुन्ना मिली को कैसे बताएगा कि उससे प्यार करता है। बहुत बार ट्राई करता है बोलने का, बट बोल नहीं पाता है। सडनली उसको लगता है कि मिली उसके हाथ से चली गई, उसको एक माया नगरी, एक बड़ी दुनिया में वो जा रही है, और मायापुरी का उसको वो दिखाती है, मैगजीन दिखाती है, या उसमें पोस्टर में होता है कि जैकी श्रॉफ और वो, और उस समय उसको लगता है ये लड़की मेरे से दूर हो चुकी है। इससे पहले आमिर सर को आपने जब भी देखा था, मुन्ना को आपने भी, इससे पहले जब भी आमिर को देखा था आपने,
तो हमेशा एक चॉकलेट बॉय, गोरा चिट्टा, मेरी माँ बोलती थी नहाया धोया लड़का लगता है, एंड कट टू आपने उसको देखा एक मुन्ना के कैरेक्टर में। आज भी मैं कभी भी बॉम्बे में कहीं थिएटर पे जाता हूँ तो देखता हूँ मुन्ना दिख जाएगा, गेटी गैलेक्सी के बाहर देखता हूँ मुन्ना दिख जाएगा। मुन्ना के कैरेक्टर के अलावा भी और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिली का कैरेक्टर, मुझे लगता है कि रामू जी जैसे श्रीदेवी को देखते थे, श्रीदेवी पूरी की पूरी उसमें उतर के आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने एनर्जी दी थी फिल्म में, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जिस तरीके से वो दिख रही थी स्क्रीन पे, आपको लग रहा था कि ये एकदम शी इज़ नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर, शी इज़ लिविंग द कैरेक्टर। इवन आप पकिया को ले लो, पकिया का भी कैरेक्टर अगर आप फिल्म में देखें, उसका दोस्त बनाए, आपको अपना लगता था कि आपका कोई दोस्त हो तो पकिया जैसा हो। तो मिली का जो भाई था मोतीलाल, उसका कैरेक्टर देख लो, जैकी श्रॉफ, सब जितने भी एक से एक कैरेक्टर्स थे। इवन अगर आप देखें गुलशन ग्रोवर जी ने जो अपना डायरेक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है स्टीवन कपूर, मतलब माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके से कैप पहनते थे, आई थिंक कैनन लिखा होता था उनकी कैप पे, और वो कैप मैं भी ढूंढता था, मुझे लगता था वो हैट नहीं होती थी, वो कैप होती थी। पहली बार मुझे लगा कि ये कूल डायरेक्टर है, हैट नहीं पहनता है, कैप पहनता है। उनके जो प्रोड्यूसर थे अफ्तार गिल जी, और जिस तरीके से वो बोलते थे कि पिक्चर का पहला प्रिंट गर्मा गर्म तैयार हुआ है। आज भी हम लोग जब पिक्चर रेडी होती है हमारी, तो हम बोलते हैं पिक्चर गर्मा गर्म तैयार हुई है। एक फिल्म होती है, नॉर्मल फिल्म होती है, आप देखते हो, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, चले जाते हो। एक फिल्म आप जीते हो उसके साथ। तो रंगीला एक ऐसी फिल्म थी जो जिसके साथ मैं जिया हूँ। मुझे डायरेक्टर बनाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है मेरा, क्योंकि जिस तरीके का सिनेमा मैं बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके की फिल्में मैं देखना चाहता हूँ, जिस तरीके की दुनिया मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत करीब है मेरी फिल्म मेकिंग से। एक डायलॉग जो सबसे मेरा मतलब फेवरेट है, जो आज तक उसको मैं गुरु मंत्र मानता हूँ। आमिर बोलते हैं कि अपन पब्लिक है, पब्लिक जिस पे अपना पैसा वसूल नहीं उसका डब्बा गुल। म्यूज़िक उस फिल्म का ऐसा था कि मतलब आपने उससे पहले उस तरीके का म्यूज़िक सुना हुआ नहीं था। इससे पहले फिल्म्स भले ही मैं देखता था, गाने आते थे तो मैं भी इधर उधर देखने लगता था, लेकिन उस फिल्म के गाने आई थिंक 6 या 7 गाने थे फिल्म में, सातों गाने आप ऐसे करके देखते हो। रंगीला मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें लेके आती है। सबसे पहले वो मेरे दिमाग में लेके आती है कि किस तरीके से आपको अपने कैरेक्टर्स बनाने चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे भी आप शूट कर रहे हैं, जहाँ जिस भी लोकेशन की आप बात करें, जिस भी शहर की आप बात कर रहे हैं, वो शहर में पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को। तो जैसे मेरे लिए वो फिल्म मुंबई, रंगीला इज़ बॉम्बे फॉर मी। वर्सोवा बीच में आज भी मैं जाता हूँ तो मुझे रंगीला के दिखता है कि यहाँ पे खड़े होकर शूट किया था। तो मैं भी जो भी चाहता हूँ कि जब मैं भी फिल्म बनाऊँ या बना रहा हूँ, जो भी उसमें उस शहर की खुशबू आए। आज जब भी सर्व करो, जब भी कुछ आगे आप चैनल बढ़ाओ, जैसे ही रंगीला आती है तो मेरा रिमोट आगे बढ़ता नहीं है, वहीं पे ऐसे मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ उसको देखता हूँ। रंगीला का वो पावर है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। Time for a short break on the show. When we come back, we have the Mozart of Madras, A.R. Rahman, talking about composing music for Dil Se as that film completes 25 years. दिल तो आखिर दिल है ना, छोटी सी मुश्किल है ना, पिया पिया जिया जिया. Oh, he was such a relief, especially in the lockdown. Just listening to his music was therapy, है ना? Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui. Shah Rukh Khan and Manisha Koirala starrer Dil Se completes 25 years earlier this week. This Mani Ratnam directorial was released on 21st August 1998 and got the world grooving to its soundtrack. Chale chaiya 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 chale chaiya chaiya chaiya. And up next we have film's music director A.R. Rahman talking about composing music for this film, and he's in conversation with my colleague Vishal Chatkara. Listen in. Dil Se soundtrack is like that textbook that each time when you read it, you find something new. I might be late to the party, but I discovered something very new recently when I was listening to the album of Dil Se. The song Satrangi Ray talks about the 7 stages of love, which actually, if you see, it encapsulates the film story and the journey of Amar, the character played by Shah Rukh Khan. How that song came into being and with such a deeper meaning. I read somewhere that it has some influence of Arabic culture.
No, actually, what happened was, I think we finished Bombay, and then Maniji Iruvar also, I think. And so Maniji once he came and he said like, "What is the next story?" I said, "I won't tell you the story." I said, "Why, sir?" "I'm just going to give you a hint. Write a song about 7 stages of love." And then he said, he showed like, attraction, seduction, death, and birth, and everything. Infatuation. Infatuation, yeah. So he gave that stuff, and I like freaked out. I said, "This is so cool." Yeah. I mean, this, you're not limited by who's acting in it, who's writing it, and it's like giving a whole space. So you've given me freedom to interpret, and I thought it's going to take ages to write that song, but it was written like in 1 hour. So I found this like rhythm pattern of a guitar, and then when that happened, I just started. I mean, there were like in most 10 stages in it, which I chopped it and put it as a 7th stage because it ends as a death thing. Like when he. You always have said that visual inspires you a lot. I want to ask you: have you recently, or in your 30-year-long journey, where you watched a movie, which you're just watching it to enjoy, and you find a scene where that inspired you to compose a song? Delhi 6. I watched the movie. I was scoring it, and there was one song left. He said, when they're driving the car, I want a song. It's a bit song. So that bit song was actually Rainatu. Oh. So I said, there's no song. The movie talks about I'll accept you the way you are. And so immediately went to Rakesh and Prasun. They were there. I said, can we do a song like this? And Prasun was like, all songs are over, man, or something like that. And Rakesh is always like, yeah, let's try it. And so this song came in. And of course, they'd finished the edit by then. So they put it on the, when it released, people started shouting, why did you put that beautiful song in that thing? Because it came late. Because I got inspired by the movie and the scenes, and then got the song. So that's one song I would say, and many other songs actually. If you go to Spotify and type Bollywood jazz, it'll show a playlist with A.R. Rahman's image on it. Really? Yeah, and it has songs like Aise Na Dekho from Ranjana, Yeah. Tu Bole from Jaane Tu Ye Jaane Na, Rehna Tu from Delhi 6, and Mera Naam Kiji. Is that the genre you enjoy the most, jazz? Jazz is every musician, right? It's a kind of trip to play jazz, because when you go deeper in music, whether it's Hindustani or Carnatic or classical music, you want to be challenged, you want to find, which unfortunately it can't run your kitchen. I love the form jazz, but it can't, because you become so involved, indulgent in it, that you'll start refusing to accept any other forms of stuff. You feel like it's lame. And I've felt that, and I took a conscious decision to switch. I said, this is not going to, I want to build a studio, and I want to make, the best sound equipment. I want to do an album, and so jazz is not one of those. I can't play in a hotel, in a bar to get that money. Movies are the only way. I'll just have to switch a little bit, adjust to what they cater, and then I'll off. So it's like a passion which is on the sideline. I remember in this film Dil Se, Shah Rukh asks Manisha's character, "Tumhe sabse zyada kya pasand hai?" And she replies, "Maa ke haath." Ah, this film was such a trendsetter in so many ways. The music, the dialogues, and the romance, and the climax. Mani Ratnam sir, thank you. With this, we come to the end of Now Showing. We see you in the next episode. I'm Atika Farooqui saying goodbye.